کراچی سے خیبر تک کے احوال کے ساتھ میں ہوں انم افضل. شامل کریں گے ہیڈ لائنز. گجرانوالہ میں وزیر آباد کے قریب ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری. 2 بچے جاں بحق جبکہ میاں بیوی زخمی ہو گئے. گجرانوالہ میں درینہ رنجش پر مخالفین نے فائرنگ کر کے سابق پٹواری کو قتل کر دیا. مقتول دہشت گردی عدالت سے پیشی بھگت کر واپس جا رہا تھا. ملزمان فرار ہو گئے. علی پور سرکل پولیس کا کچے کے علاقے میں اشتہاریوں کی کمین گاہوں پر چھاپا. ملزمان کی فائرنگ سے ایک چرواہا جاں بحق. پولیس نے 5 مجرمان کو گرفتار کر لیا. کمالیہ میں پولیس نے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. متاثرین نے اعلیٰ حکام سے پولیس گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ترکی جانے والے کوٹ ادو کے رہائشی نوجوان پر ایجنٹ مافیا نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. والدین نے الزام لگایا ہے کہ رقم نہ دینے پر بیٹے پر تشدد کیا جاتا ہے. اعلیٰ حکام نوٹس لیں. خوشاب کے مائنز ریسکیو اینڈ سیفٹی اسٹیشن میں 6 ماہ کا تربیتی کورس مکمل کرنے والے نوجوان کے اعزاز میں تقریب. صوبائی وزیر ویبر قومی اور صوبائی اسمبلی کی شرکت. گجرانوالہ ڈسٹرکٹ اسپتال میں طبی سہولیات کا فقدان. الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور لیبارٹری ٹیسٹ کی فیس ڈبل وصول کی جاتی ہے. دور دراز سے آئے مریض اور لواحقین خوار ہو گئے. ننکانہ صاحب کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی ایمرجنسی میں اپنی ماں کو چیک اپ کے لیے کرانے کے لیے لانے والے نوجوان کو ڈاکٹر اور عملے نے مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. پاک پتن میں تھانہ سٹی کا افتتاح کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کہتے ہیں شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے جدید نظام متعارف کرا دیا گیا ہے. سیالکوٹ میں موسلادھار بارش سے ہر طرف جل تھل ہو گیا. بارش کے باعث سردی کی شدت میں بھی اضافہ. شہریوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے. چکوال میں بھی طویل انتظار کے بعد باران رحمت برس پڑی. ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا. بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. ننکانہ صاحب میں سکھ مذہب کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کے 350ویں جنم کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں. کھیلوں کے مقابلے اور دیگر شعبہ زندگی میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. خیرپور سکھر اور شکارپور اضلاع کے کچے کے علاقے میں پولیس کا آپریشن جاری. مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک، 10 کو گرفتار کر لیا گیا. چھ روز قبل سندھ یونیورسٹی میں پراسرار طور پر قتل ہونے والی طلباء کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف قمبر میں احتجاج کا سلسلہ جاری. مظاہرین کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. اور مردان میں پولیس نے سرچ آپریشن کرتے ہوئے 21 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا. اسلحہ بھی برآمد کیا گیا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا. سب سے پہلے لودھرا سے افسوسناک خبر. لودھرا میں کھلا پھاٹک معصوم زندگیاں نکل گیا. 2 موٹر سائیکل رکشے تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ گئے. اندھوناک حادثے کے نتیجے میں 7 طلباء سمیت 8 افراد جاں بحق جبکہ 10 زخمی ہو گئے. ایک رکشہ بچوں سمیت تو آیا چلتی ٹرین کی زد میں.
مگر ایک رکشے نے چلتی ٹرین کو ہٹ کیا. یہ نیگلیجنس ہے یا ہیوی فاگ ہے؟ غفلت یا سنگین غلطی. ایک اور افسوسناک ریل حادثہ، قیمتی انسانی جانیں نکل گیا. لودھرا میں اسکول کے بچوں سے بھرے 2 رکشے جلال پور روڈ پر ریلوے پھاٹک سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے آنے والی ہزارہ ایکسپریس کی زد میں آ گئے. ایک رکشہ بچوں سمیت تو آیا چلتی ٹرین کی زد میں، مگر ایک رکشے نے چلتی ٹرین کو ہٹ کیا. یہ نیگلیجنس ہے یا ہیوی فاگ ہے؟ اندھوناک حادثے میں 7 طلبہ اور رکشہ ڈرائیور موقع پر ہی جام بحق، جبکہ 10 زخمی ہوئے. واقعے کے فوری بعد ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا. عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ جس مقام پر حادثہ پیش آیا وہاں ریلوے انتظامیہ کا کوئی اہلکار موجود نہیں تھا اور نہ ہی اس مقام پر پھاٹک کو بند کرنے کا کوئی باقاعدہ نظام موجود ہے. ایک رکشہ بچوں سمیت تو آیا چلتی ٹرین کی زد میں، مگر ایک رکشے نے چلتی ٹرین کو ہٹ کیا. یہ نیگلیجنس ہے یا ہیوی فاگ ہے؟ دوسری جانب ریلوے ترجمان کے مطابق حادثہ پھاٹک کھلا ہونے کی وجہ سے پیش آیا. واقعے کے بعد ہزارہ ایکسپریس کی عملے اور ریلوے پھاٹک کے گیٹ کیپر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ادھر گجرانوالہ میں وزیر آباد کے قریب ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی. 2 بچے جاں بحق جبکہ میاں بیوی زخمی ہو گئے. گجرات کا رہائشی عاصم موٹر سائیکل پر اپنی بیوی، 4 سالہ بیٹی اور 2 سالہ بیٹے کے ہمراہ گجرانوالہ آ رہا تھا کہ راستے میں جی ٹی روڈ پر وزیر آباد کے قریب موٹر سائیکل ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 4 سالہ زینب اور 2 سالہ محمد علی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ دونوں میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کیا، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے بعد تشویشناک حالت کے باعث لاہور ریفر کر دیا گیا ہے. گجرانوالہ میں دہشت گردی عدالت سے تاریخ پیشی بھگت کر جانے والے سابق پٹواری کو مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. گجرات کا رہائشی سابق پٹواری مبشر گجرانوالہ دہشت گردی کی عدالت میں تاریخ پیشی کے بعد کار میں سوار ہو کر لاہور جا رہا تھا کہ راستے میں کاموکی کے قریب مسلح افراد نے کار پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں مبشر موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ ملزمان فرار ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا. پولیس کے مطابق مقتول کو درینہ دشمنی پر مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کیا، تاہم مزید تفتیش کی جا رہی ہے. ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے دریا خان میں مقامی شوگر مل میں سٹیمر پھٹنے سے 1 مزدور جاں بحق اور 5 شدید زخمی ہو گئے، جنہیں ٹی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا ہے. تاہم ناکافی سہولیات کے باعث انہیں ابتدائی طبی امداد نہیں دی جا سکی اور ڈی ایچ کیو بھکر منتقل کر دیا گیا ہے. اسی بارے میں مزید اپڈیٹس لیں گے رانا عمران اسلم سے. رانا عمران اسلم، بتائے گا اس متعلق. جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ بھکر کی تحصیل دریا خان میں واقع فیکٹو شوگر مل میں پیش آیا ہے، جہاں مزدور بوائلر کے سٹیمر کے پائپ پر کام کر رہے تھے کہ فنی خرابی کے باعث سٹیمر پھٹ گیا، جس کی زد میں آ کر ایک مزدور حاجی رضا محمد موقع پر ہی جاں بحق ہوا، جبکہ 5 افراد شدید زخمی ہوئے. جاں بحق ہونے والے حاجی رضا محمد کی عمر قریباً ہمیں 20 سال بتائی گئی ہے. اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سوشل سیکورٹی بند ہونے کے باعث جو ہے وہاں زخمی ہونے والے، جلس جانے والے مزدوروں کو مل کے اندر کسی بھی قسم کی ابتدائی طبی امداد نہ مل سکی اور انہیں زخمی حالت میں ٹی ایچ کیو دریا خان منتقل کیا گیا، لیکن وہاں بھی ہسپتال میں جمعہ کے باعث جو ہے عملہ نہیں تھا. اسپتال میں سہولیات کا فقدان ہے. عمران، بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے. علی پور سرکل پولیس نے کچے کے علاقے میں اشتہاریوں کی کمینگاہوں پر چھاپا مارا. جواب میں اشتہاریوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک چرواہا جاں بحق ہو گیا، جبکہ پولیس نے 5 مجرمان کو گرفتار کر لیا ہے. مزید جانتے ہیں علی پور سے ملک فیاض حسین کے اس رپورٹ میں.
अलीपुर सर्कल पुलिस के थाना खैरपुर सादात, थाना कुंदई, थाना सदर अलीपुर की स्पेशल टीमों ने कच्चा के इलाका मौजामार्ड सुहारे शाह में इश्तिहारियों की कमीन गाहों पर छापा मारा तो इश्तिहारियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक बदनाम में जमाना इश्तिहारी मजीदा बोसन और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक चरवाहा जाँ बहक हो गया और 5 इश्तिहारी मुजरमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीदा बोसन अपने कुछ साथियों के हमरा फायरिंग करते हुए फरार हो गया। याद रहे कि चंद माह कबल थाना सदर पुलिस ने बदनाम में जमाना इश्तिहारी मजीदा बोसन को उसके 4 बेटों और एक भतीजे के हमरा मीडिया के सामने पेश किया और मीडिया को बताया कि मजीदा बोसन 50 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मतलूब था। मजीदा बोसन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मीडिया के सामने पुलिस अफसरान ने बुलंद बांग नारे लगाए और मीडिया को बताया कि मजीदा बोसन कत्ल, राहजनी, डकैती और अगवा बराए तवान के संगीन मुकदमात में मतलूब था और कच्चा के इलाके में खौफ की अलामत बना हुआ था, जिसके सर की कीमत 20 लाख रुपए थी। इश्तिहारी मुजरमान से 6 अदद कलाशनकोफ, 2 अदद रिपीटर और काफी मिकदार में एमुनेशन बरामद की। हत्ता के मजीद बोसन से बरामद होने वाला असला का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया और एक डील के जरिए उसके बेटों और भतीजों को चंद मामूली नौयत के मुकदमात में चालान किया गया और मजीद बोसन को बाइज्जत घर भेज दिया गया। उसी दौरान मजीद बोसन पर जितने भी मुकदमात थे सभी की अबूरी जमानतें पुलिस ने खुद करवाई। मजीद बोसन छोटू गैंग और जाका गैंग का साथी भी रहा है। बड़े बड़े सियासतदानों ने मजीद बोसन के सरपरस्त रहे हैं और सियासतदानों ने मजीद बोसन गैंग को हमेशा अपने मुखालिफिन और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अलीपुर के अवामी व समाजी हलकों ने वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से तहकीकात का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुदस्सिर के साथ मलिक फयाज सरवाल, वक्त नुमाइंदा वक्त न्यूज अलीपुर। सखर में निजी टीवी की टीम पर तशद्दुद के खिलाफ शकवाल की सहाफी तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। वक्त न्यूज़, नवाए वक्त ग्रुप और रीजनल यूनियन ऑफिस ऑफ जर्नलिस्ट चकवाल के ज़ेरे एहतमाम तहसील प्रेस क्लब के DPO ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर सहाफ़ियों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी सहाफ़ियों ने सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि सहाफ़ियों के खिलाफ लाठी और गोली की सरकार नहीं चलेगी और मीडिया नुमाइंदगान के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी किसी सूरत काबिले कबूल नहीं है। उनका कहना था कि हुकूमत सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डिनेंस के लेकर आए ताकि रियासत के चौथे सुतून सहाफत को दरपेश खतरात दूर किए जा सकें। कमालिया में पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरीन ने आला हुक्काम से पुलिस गर्दी का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। बच्चों की हवालगी के तनाज़े पर खावद ने ससुरालियों के खिलाफ कराची में बीवी बच्चों के अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। आज कराची पुलिस ने कमालिया पुलिस के हमरा वालिदैन के घर पर छापा मारा और बीवी कुलसूम समेत उसकी बहनों और मां को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस कुलसूम और उसके दोनों बच्चों को जबरदस्ती थाने ले गई, जहां उन्हें 4 घंटे तक हब्से बेजा में रखा। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद अज़ां इलाका मजिस्ट्रेट ने खातून के बयान पर उसे वालिदैन के हवाले कर दिया। अदालत का फैसला आने के बाद खावंद मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। मुतासरा खवातीन ने वजीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। और अभी आपको खबर दें, मंडी शाहजियूना के इलाके मोहल्ला जोगिया में 62 अफराद ने गरीब खानदान के घर पर कब्जा कर लिया है और 62 अफराद की जानिब से कत्ल की धमकियां भी दी जा रही हैं। इसी बारे में अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मलिक मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, बताइएगा इस मुतालिक। जी, मोहल्ला जोगिया वाला शाहजियूना का रिहायशी मोहम्मद अमीन नामी शख्स गरीब खानदान से तल्लक रखता है। इसके मलकीती घरेलू मकान पर गुलाम अली SSP गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहजियूना तैनात है। इसने मिली भगत के साथ मकान पर कब्जा जमा लिया और मियां बीवी को कत्ल करने मारने की धमकियां। हुकूमत पंजाब से आज खुद नोटिस का मुतालबा। जी बहुत शुक्रिया इकबाल, आपने तफसीलात दी। और अब आपको बताएं, तुर्की जाने वाले कोटद्दू के रिहायशी नौजवान पर एजेंट माफिया ने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि रकम न देने पर बेटे पर तशद्दुद किया जाता है। आला हुक्काम इसका नोटिस लें। बूढ़े
बूढ़े वालिदैन का इकलौता सहारा कोट उद्दू का रिहायशी यामीन सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए तुर्की तो पहुंच गया, मगर बदकिस्मती की परछाई ने पीछा ना छोड़ा। बेबस वालिदैन ने बताया कि यामीन इस्लामाबाद में मजदूरी करता था। शकील नामी शख्स नौकरी का झांसा देकर तुर्की ले गया। यामीन की वापसी के लिए तुर्की में मौजूद सरदार वकार नामी एजेंट को 1 लाख रुपए भेजे, मगर अब वो मजीद 4 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। बूढ़े वालिद का कहना है कि रकम ना देने पर यामीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हमारे बच्चे को जो है ना तुर्की ले गए, अब जो है ना वो 4 लाख की डिमांड करते हैं। आपका बच्चा जो है ना जेल चला गया है, तशद्दुद करते हैं। हमारा बच्चा रोता है, मेहरबानी करके मुझे छुड़वाया जाए। जो है ना हुकूमत से हमारी अपील है, हमारे बच्चे को छुड़वाया जाए। बूढ़े वालिदैन का कहना है कि 2 माह से उनके बेटे से कोई राब्ता नहीं हो सका। उन्होंने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि उनके बेटे को बाजियाब कराया जाए। चेयरमैन बल्दिया पाकपतन चौधरी मुजफ्फर इकबाल का कहना है कि पाकपतन को रोशनियों का शहर बनाएंगे। हफ्ता सफाई नहीं बल्कि पूरा साल ही सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाएगा। बल्दिया पाकपतन के पहले इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया पाकपतन चौधरी मुजफ्फर इकबाल का कहना था कि शहर में सफाई सुथराई की सहूलियात को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाएगा। करप्शन के नासूर को बल्दिया पाकपतन से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बल्दिया को शहरियों की खिदमत का इदारा बनाएंगे। इजलास में वाइस चेयरमैन चौधरी इसरार अहमद समेत तमाम काउंसलर्स और खवातीन मेंबरान ने शिरकत की। पंजाब भर में बल्दियाती निज़ाम को फाल कर दिया गया है और मुंतखब मेयर्स ने भी अपने दफातर में काम शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उस्मान शेख सरगोदा के मेयर असलम नवीद के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह सरगोदा में भी बल्दियाती निज़ाम जो है वो फाल हो चुका है। इस वक्त भी मेयर सरगोदा जो है मलक असलम नवीद जो है उन्होंने अपने दफ्तर में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी मलक साहब, हमें ये बताइएगा कि अवलीन तरजीह आपकी क्या है सरगोदा के मसाइल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्फ के बाद मेरा ये दूसरा दिन है वर्किंग का अपने ऑफिस में। यहाँ पे मसाइल का तो एक अंबार है। सफाई का मसला है, सीवरेज का, पानी का, बहुत बुरे हालात हैं सिटी के। लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम एक बड़ा जामिया प्रोग्राम इन चीज़ों के लिए तरतीब दे रहे हैं और इसी मंडे ट्यूसडे को हम इंशाअल्लाह क्लीन द सिटी एक स्कीम शुरू कर रहे हैं कि पूरे शहर को साफ़ करें। जी जैसा कि आपने जाना कि मेयर सरगोदा मलक असलम नवीद अमान का यही कहना है कि सरगोदा के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उससे जल्द ही इंशाअल्लाह काबू पा लेंगे। उस्मान शेख सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सूबाई वजीर बातनियात चौधरी शेर अली खान ने कहा कि सूबाई हुकूमत के फनी और तरबियती प्रोग्राम के तहत बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में हुनरमंद बनाने के लिए अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। खुशाब के माइंस रेस्क्यू एंड सेफ्टी स्टेशन में 6 माह का तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले नौजवानों की तकरीब तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि नौजवान तरबियत मुकम्मल करने के बाद सनत, तिजारत और दीगर शोबों में अपनी सलाहियतें कार लाकर सिर्फ अपने अहले खाना की किफालत करेंगे बल्कि मुल्क की तामीर और तरक्की में भी कलीदी किरदार अदा करेंगे। चौधरी शेर अली ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बरसरे इख्तिदार आते ही दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्क व कौम को दरपेश बहरानों पर काबू पाने के लिए अमली किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में मुल्क की मईशत में इनकलाबी तब्दीलियां रूनमा हुई। इस मौके पर कौमी असम्बली के रुकन मलिक शाकिर बशीर अवान, पंजाब असम्बली के रुकन मलिक जावेद इकबाल आवान, इंस्पेक्टर माइंस पंजाब रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर सूबाई वजीर ने माइंस प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले तलबा में 15 लाख रुपए और ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए। गुजरांवाला के सरकारी अस्पताल में तिब्बी सहूलियात के फुकदान के बायस मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी उठाना पड़ रही है। शहरियों ने इस्लाह अहवाल का मुतालिबा किया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से आवाम को इलाज मुआवजे की बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। गुजरांवाला की 60 लाख आबादी के लिए बनाया गया वाहिद सरकारी अस्पताल भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है।
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रोजाना 4000 मरीज इलाज मुआवजे की गर्ज से आते हैं, मगर डॉक्टर्स की कमी की वजह से लोगों को कई घंटे कतारों में खड़े होकर बारी का इंतजार करना पड़ता है और अक्सर को टाइम खत्म होने की वजह से बगैर चेकअप कराए वापस लौटना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और लेबोरेटरी टेस्ट की फीस डबल वसूल की जाती है और तो और सीटी स्कैन मशीन भी खराब हो चुकी है। मरीजों और लवाहिकीन का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गरीब आवाम को सहूलत नाम की कोई चीज मयसर नहीं। सिविल हॉस्पिटल में जब भी आते हैं इनकी मशीनें खराब रहती हैं। सुबह आए तो नंबर इनका लगाते हैं, फिर ये क्या करते हैं कि सिफारिश वाले आते हैं इनके, और जो नंबर वाले हैं वो वैसे के वैसे बैठे रहते हैं। अब अल्ट्रासाउंड करवानी है तो सुबह के बैठी हुई है। साल हो गया, अब जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है हज़ारों लोग आते हैं, इनकी सीटी स्कैन ही खराब होते हैं। ਅਸੀਂ सुबह 5 बजे दे आके ते बैठे हैं, रोजाना आन के इतने तंग होने परेशान होने। अस्पताल की नाकिस मशीनरी खरीद कर उसे ठीक कराने के चक्कर में हजारों नहीं बल्कि लाखों के घपले हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हिदायत के बावजूद चेक एंड बैलेंस का निजाम न होने की वजह से मरीज तड़प कर जान दे देते हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत दावों की बजाय आवाम को सेहत की सहूलतें फराहम करने पर तवज्जो दे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। ननकाना साहिब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी में अपनी मां को चेकअप कराने के लिए लाने वाले नौजवान को डॉक्टर्स और अमले ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। कनाडा कॉलोनी ननकाना साहिब का रिहायशी इरफान नजीर अपनी वालिदा को चेक करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर आया, जहां 2 घंटे तक डॉक्टर्स ने उसे चेक न किया और वो दर्द से तड़पती रही। मां की हालत बिगड़ती देखकर डॉक्टर को अपनी वालिदा को जल्दी चेक करने की दरख्वास्त की तो डॉक्टर और ड्यूटी पर मौजूद दीगर अमले ने उसे मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो नीम बेहोश हो गया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर उमर फारूक ने बताया कि इरफान ने पहले डॉक्टर को पत्थर मारा, जिसके बाद अमले ने उसे पकड़कर मारा। ताहम वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होगी और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डस्का के सिविल अस्पताल की इंतजामिया की बेहिसी जिचगी के लिए आई खातून को धमकी देकर बाहर निकाल दिया गया। मरीजा के लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। डस्का के मोहल्ला ठठियारा का रिहायशी मेहनतकश अली रजा अपनी बीवी को जचगी के लिए सिविल अस्पताल लाया। ड्यूटी पर मौजूद अमले ने बेहिसी का मुजाहिरा करते हुए खातून को तिब्बी इमदाद देने की बजाय धमकी देकर बाहर निकाल दिया, जहां मरीजा शदीद सर्दी में खुले आसमान तले 1 घंटे तक तड़पती रही। मरीजा के खाविंद ने मीडिया को बताया कि उसकी बीवी की हालत बहुत खराब हो रही है, मगर इंतजामिया अपनी बेहिसी पर कायम है। मरीजा के लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए आला हुक्काम से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। डेरा गाजी खान का डिस्ट्रिक्ट एंड टीचिंग अस्पताल इलाजगाह की बजाय मसाइलिस्तान बन गया। डॉक्टर्स तनख्वाह तो सरकारी खजाने से लेते हैं, लेकिन फराइज निजी क्लिनिक्स पर अदा करते हैं। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट एंड टीचिंग अस्पताल, जो न सिर्फ डेरा गाजी खान के लाखों अफराद के लिए सेहत की सहूलियात फराहम करता है, बल्कि राजनपुर और बलूचिस्तान के अवाम के लिए भी इलाज मुआलजे का वाहिद सरकारी मरकज है। इंतजामिया की गफलत के बायस अस्पताल में बदनज़मी इंतहा को पहुंच चुकी है, जिसके बायस मरीजों और लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में आए लोगों का कहना है कि ड्यूटी शेड्यूल के मुताबिक इमरजेंसी वार्ड्स में 4 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाती रही है, मगर वार्ड्स में सिर्फ 1 डॉक्टर मौजूद होता है। अमले की कमी के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि डॉक्टर्स तनख्वाहें तो सरकारी खजाने से लेते हैं, मगर जिम्मेदारियां निजी क्लिनिक्स पर अदा करते हैं। अक्सर औकात ओपीडी भी बंद रहता है, जिसके बायस दूर दराज इलाकों से आए सैकड़ों मरीज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। और मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान के निश्तर अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन खराब हो गई है। मरीजों को प्राइवेट सेंटर्स पर रेफर किया जाने लगा है। प्राइवेट सेंटर्स की फीस बहुत ज्यादा है। इतने पैसे कहां से लाए? गरीब आवाम काफी परेशान दिखाई देती है। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज एजाज तरीन से। जी एजाज। जी, निश्तर अस्पताल मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां इलाज कराने के लिए जनूबी पंजाब के साथ साथ बलूचिस्तान और KPK के मुख्तलिफ इजला से भी मरीज यहाँ पर आते हैं, लेकिन सीटी स्कैन मशीन कई दिनों से ख़राब होने की वजह से मरीज खासे परेशान हैं। मैं आपको ये बता दूं कि निश्तर अस्पताल की इकलौती सीटी स्कैन मशीन जो है
वो कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाती है या ख़राब कर दी जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ खासे परेशान है और सीटी स्कैन के लिए मरीज़ों को प्राइवेट सेंटर भेजा जाता है, जहां पर उनसे किसी सेंटर में 2500 रुपये वसूल किए जाते हैं तो कहीं 3000 उनसे वसूल किए जाते हैं, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों से आने वाले जो मरीज़ और उनके लवाकीन हैं वो खासे परेशान हैं। और निश्चित इंतज़ामिया का कहना है कि सीटी स्कैन मशीन को रिपेयर के लिए बंद किया गया है, जो 1-2 दिन में दुरुस्त कर दी जाएगी। जी तरीन मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। महकमे बहबूद आबादी की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अटक में 29 नए मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। अटक के डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर जफर इकबाल और डेमोग्राफर तौकीर शहजाद ने मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि महकमे बहबूद आबादी की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं और साथ साथ मुतादिद इक़दामात उठाए जा रहे हैं और इसी मकसद के हुसूल के लिए अटक में 29 नए फलाही मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जिनके लिए नया अमला भी भर्ती किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना है कि शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। पाकपतन में थाना सिटी का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें डीपीओ समेत एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना था कि पुलिस शहरियों को फौरी इंसाफ फराहम करने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि शहरियों की शिकायत का ऑनलाइन इंदराज किया जाएगा। उनका कहना था कि मसाइल के फौरी हल के लिए सिटी डेस्क भी कायम किया गया है और माल मसरूका बरामद होने की सूरत में अवाम को बजरिया SMS मुत्तला किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि थाना कल्चर तब्दील किया जा चुका है। बद इखलाकी की शिकायत पर एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। सियालकोट में आज सुबह गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। सियालकोट और गिरदरवाह में आज सुबह सवेरे आसमान पर काली घटाएं छा गई और फिर बादल जमकर बरसा। गरज चमक के साथ बारिश के कई घंटे तक जारी रही, जिसकी वजह से हर तरफ जल थल हो गया। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। हालिया बारिश पर शहरियों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए, क्योंकि खुश्क सर्दी की वजह से शहरी बुखार, खांसी, जुकाम समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे थे। डॉक्टर्स के मुताबिक हालिया बारिश की वजह से खुश्क सर्दी खत्म हो जाएगी, जिससे बीमारियां खत्म होंगी। और उधर चकवाल में भी तवील इंतजार के बाद बाराने रहमत बरस पड़ी। हर तरफ जल थल हो गया। आज सुबह से ही गहरे बादलों ने चकवाल को अपनी लपेट में लिया और दिन 11 बजे के करीब गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बायस हर तरफ जल थल हो गया और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने बाराने रहमत बरसने पर खुशी का इजहार किया। ननकाना साहिब में सिख मजहब के 10वें गुरु गोबंद सिंह की 350वीं जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। खेलों के मुकाबलों और दीगर शोबा हाय जिंदगी में नुमायां कारकर्दगी के मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। सिख मजहब के 10वें गुरु गोबंद सिंह के 350वें जन्मदिन की तकरीबात भोग की रस्म से इख्तिताम पजीर हुई। आखिरी रोज होने वाली मरकजी तकरीब में इकलियती रुकन और सूबाई असम्बली और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कॉमर्स सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, सिख कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर सरदार मस्तान सिंह समेत सिख कम्युनिटी के मजहबी रहनुमाओं और मुल्क भर से सिख संगत की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और सरदार मस्तान सिंह का कहना था कि गुरु गोबंद सिंह ने हक व सच के लिए अपने बच्चों की जानों की कुर्बानी दी और पूरी इंसानियत को हक व सच का साथ देने और बातिल के सामने डट जाने का दर्स दिया। गोबिंद सिंह जी महाराज की तालीम है, जो हक व बातिल की लड़ाई है, जो जुल्म के खिलाफ एक जिहाद था गुरु गोबिंद सिंह जी का, उन्होंने पूरा परिवार जो कुर्बान किया। तो आज उसका यही प्रण था कि हम उस पे बात पे डिटरमेंट है और हम उनकी जो तालीमात है, जो उनकी शिक्षा है, उसी तरीके से आगे लेके चलेंगे। सिख कम्युनिटी है और इंसानियत पसंद लोग हैं। मैं सबको श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का 350वां जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ देता हूँ जी। तकरीब के आखिर में सोसाइटी की तरफ से खेल के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले सिख नौजवानों, बच्चों और बच्चियों समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में नुमाया खिदमत सर अंजाम देने वाले अफराद में शील्ड और इनामात तकसीम किए गए। लाहौर में मुनक्किद होने वाली सालाना जोजस्टो नवाजा नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी फरहान खान कांजू का भावलपुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। दोस्तों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। फरहान खान
कांजू ने लाहौर में मुनक्किदा 6 रोजा जोजेस्टिव नवाजा नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से 14 टीमों ने हिस्सा लिया। फरहान कांजू अपने कोच के हमरा नेशनल चैंपियन बनने के बाद बहावलपुर पहुँचे तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। शायकीन और दोस्तों की बड़ी तादाद ने ढोल की थाप पर खूब भंगड़े और झूमर भी डाला। फरहान खान कांजू का कहना था कि उनकी इस कामयाबी में उनके वेलकम बैक। खैरपुर, सखर और शिकारपुर इजला के कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन जारी है। एक डाकू हलाक 10 को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी खैरपुर गुलाम असफर महेसर ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कच्चे के इलाके बागड़जी में तेजी से ऑपरेशन जारी है, जिसमें काफी हद तक कामयाबी हासिल की गई है। एसएसपी ने बताया कि चंद दिनों में सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुलाम मुस्तफा और सद्दाम फहलपूटो को, जो पुलिस को दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब थे, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर ने पुलिस के साथ मजाहमत की, जिस पर सद्दाम फरार हो गया और मदाखलत पर रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंबर में कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वरसा ने अहले इलाका के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। 2 हफ्ता कबल मकवाल के थाने की हुदूद में कत्ल होने वाले मकतूल रहमतुल्लाह लहर के कातिलों की गिरफ्तारी के खिलाफ वरसा ने अहले इलाका के हमरा शहीद बेनजीर भुट्टो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और धरना दिया। एहतजाज में मर्द, खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मगसी कबीले से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान ने रहमतुल्लाह लहर को कत्ल किया, जबकि इलाके का बाअसर शख्स उनकी सरपरस्ती कर रहा है। ये वही वजह है कि पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने से गुरेजा है। छह रोज कबल सिंध यूनिवर्सिटी में पुरस्कार तौर पर कत्ल होने वाली तालिबा नाइला रिंद के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। सिंध यूनिवर्सिटी की तालिबा के कत्ल के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहीद नाइला जिद्दोजहद कमेटी, गर्ल्स स्कूल की तलबा, असातिज़ा, पीपी शहीद भुट्टो और जिले संघार जिद्दोजहद की कमेटी के अराकीन ने भरपूर शिरकत की। एहतजाजी रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई शोहदा चौक पहुंची, जहां धरना दिया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि नाइला का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। नाइला रिंद के कातिलों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाए। सिंध यूनिवर्सिटी इंतजामिया की नाअहली की वजह से कत्ल का अंतुनाक वाकया पेश आया। उन्होंने मजीद कहा कि नाइला रिंद को सिंध यूनिवर्सिटी में बेदर्दी से कत्ल करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से अपील करते हैं कि इस वाकये का नोटिस लेकर अदालती कार्रवाई की जाए। हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो हॉस्टल में तालिबा नाइला रिंद की हलाकत का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया है। हैदराबाद डीआईजी रीजन कादिम हुसैन रिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नाइला रिंद ने दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी की। उनका कहना था कि अनीस खासखेली ने इससे पहले शादी का आस्था दिया, फिर मना कर दिया, जिस पर उसने ये इंतहाई कदम उठाया। उन्होंने बताया कि अनीस खासखेली आदि मुजरिम है, वो पहले भी कई लड़कियों को अपने चुंगल में फंसा चुका है। डीआईजी रीजन का कहना था कि अनीस खासखेली ने एतराफी जुर्म कर लिया है, जिसके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और ऐसी दफात शामिल की जाएंगी जिससे सजा उम्र कैद है और नाइला रिंद के वरसा की जानिब से एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। जैकबाबाद में सिख मजहब के 10वें गुरु गोबंद सिंह के 350वें जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात जारी हैं। सिख यात्रियों ने रैली निकाली और मार्शल आर्ट्स और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया। मुल्क भर में सिख मजहब के 10वें गुरु गोबंद सिंह के 350वें जन्मदिन की तकरीबात का सिलसिला जारी है। जैकबाबाद में तकरीबात का इनाकाद किया जा रहा है, जिसमें मुकामी और भारत से आए सिख यात्रियों की कसीर तादाद शिरकत कर रही है इस सिलसिले में शाहगासी मोहल्ला से सिखों के गुरुद्वारा से एक मजहबी और रवायती रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों की तादाद में सिखों ने शिरकत की। रैली में पिशावर और लाहौर से शिरकत करने वाले नौजवानों ने गुरु गोबंद सिंह के जन्मदिन की खुशी में आतिशबाजी की और मार्शल आर्ट के फन का मुजाहरा भी किया, जिसे देखकर बच्चे, बड़े और शहरी खूब महसूस हुए।
और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। मर्दान में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 21 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। डीपीओ मर्दान की हिदायत पर सर्च ऑपरेशन थाना तख्त भाई की हुदूद में किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तख्त भाई से मुल्हिका इलाकों में मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे मारे। सर्च ऑपरेशन में 21 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद से असलहा भी बरामद हुआ है। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने जदीद निजाम के जरिए मुश्तबा अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों का डेटा चेक किया। इस दौरान 6 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बालाई अजला में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। पेशावर में वक्फे से जारी हल्की बारिश से ठंड में इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी कहीं पर हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बारिश कामरा, दीर और पाराचनार में 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि पाराचनार में दर्जा हरारत -5, कालाम में -4, मालम जब्बा में -3 और दीर में -2 रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबरें होंगी बलोचिस्तान से। डेरा बोगटी में हसास इदारे और एफसी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक एफसी और हसास इदारों ने खुफिया इत्तला पर डेरा बोगटी में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गोला बारूद और असलहे की बड़ी खेप बरामद करके शरपसंदों के अजाइम खाक में मिला दिए। कार्रवाई के दौरान पीरको, चतर और खंडरू में शरपसंदों के खिलाफ 4 कैंप भी तबाह कर दिए गए, जबकि तबाहशुदा कैंपों से 2 मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर, 35 किलो बारूद, 4 बारूदी सुरंगें और 4000 ग्रैंड लॉन्चर राउंडर्स और हजारों की तादाद में मशीन गन राउंडर भी बरामद किए गए हैं। कराची से खैबर तक के हवाले से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप वक्त न्यूज के साथ रहिए।